جیسے تمباکو، گٹکا، شراب نوشی وغیرہ، بے حیائی۔ انہی حالات کے مد نظر پورا شہر میں مختلف مساجد و مدارس و دیگر مقامات پر پروگرام کے باقاعدہ اشتہار بنائے گئے تھے، جس میں بطور مقررین حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، اور حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی مدظ اللہ کا انتخاب ہوا تھا۔ لیکن ریاست مہاراشٹر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے بیماری کے پیش نظر پروگرام کو آن لائن طے کیا گیا ہے۔ ملک کی مشہور و معروف شخصیت بلکہ آل راؤنڈر، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ جہاں میں اہل ایمان خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ابھی امت بانج نہیں ہے۔ جہاں ملک میں بہت سے بڑے اکابرین کی لمبی فہرست ہے، انہی میں میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود کہ آپ کبھی گجرات میں ہیں تو کبھی بنگال میں، کبھی آسام میں ہیں تو کبھی کشمیر میں، آج تاریخ 27 فروری روز سنیچر رات میں 9 بجے اپنے طے شدہ پروگرام کو آن لائن تقریر فرمائیں گے۔ ہم جمعیت علماء پونہ شہر آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں۔ اب میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے زرین کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو سنیں اور استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے
باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سنیچر کے دن یہ لائیو بیان ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا ہر ہفتے جمعہ کو لائیو بیان ہوتا ہے، گزشتہ کل بھی وائرل نیوز کا لائیو بیان آپ نے ہزاروں کی تعداد میں دیکھا۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں، کیونکہ گزشتہ کل بھی اصلاح معاشرہ پر بہت اہم عنوان تھا کہ شادی میں جو بارات ہے اور جہیز ہے اور مہر ہے، آخر ان تینوں کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو بہت تفصیلی بات ہوئی۔ گزشتہ ہفتے بھی جو اس سے پہلے والا ہفتہ تھا وہ بھی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تھا کہ شادیوں میں فضول خرچی جو ہے اس وقت امت میں تباہی کا سامان پیدا کر رہی ہے، امت کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا یہ لائیو بیان سنیچر کے دن خاص طور سے جو طے کیا گیا ہے 27 تاریخ کو 9 بجے سے لائیو بیان تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج کا بیان اور اس کا پورا انتظام جمعیت علماء شہر پونے کی جانب سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آج لائیو بیان رکھا گیا ہے۔ ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے کہ 26 تاریخ کو میرا بیان جمعیت علماء شہر پونا کی جانب سے حضرت مولانا قاری ادریس صاحب ہے، محمد یوسف زکاتی صاحب ہے جو جنرل سیکرٹری ہے جمعیت علماء کے، قاری محمد ادریس صاحب ہے جو جمعیت علماء پونا شہر کے صدر ہے، بڑے ایکٹیو لوگ ہیں یہ، الحمدللہ بڑے فعال ہے۔ اور جمعیت علماء شہر پونا کے تعلق سے میں اتنا ضرور کہوں گا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں ہماری جمعیت علماء کے لیے، خاص طور سے ہمارے قاری ادریس صاحب، زکاتی صاحب اور پوری جمعیت کی پونا شہر کی ٹیم، اور خاص طور سے ہمارا بچہ بہت متحرک ہے، بڑا فعال ہے، قاری ادریس صاحب کا بیٹا شعیب، کہ جمعیت علماء پونا مختلف انداز میں اللہ کے بندوں کی میڈیکل لائن سے بھی سیوا کر رہی ہے۔ اور جمعہ کے دن میرا لائیو بیان وہاں پر تھا لیکن میں نہیں جا پایا کیونکہ کورونا پھر آ گیا اور حکومت نے پروگرامز پر بین لگا دیا، 50 سے زیادہ لوگ شادیوں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرا پروگرام ٹکٹ وغیرہ شعیب نے سب پورا کنفرم کروا دیا تھا، لیکن پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور خاص طور سے حکومتی قوانین کے مد نظر ہم نے یہ آن لائن پروگرام آج ارینج کیا، ورنہ کل جمعہ میں میرا بیان تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں دوپہر میں جو قاری ادریس صاحب کا جو مدرسہ چلتا ہے پونا شہر کے کونڈوا میں، جامعۃ الصالحات کے نام سے بڑا زبردست بیٹیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا ادارہ چلتا ہے، اس سے پہلے میں وہاں جا کر بیان بیٹیوں میں کر چکا ہوں، 500 کے قریب وہاں پر طالبات پڑھتی ہے۔
اصلاح معاشرہ پر میں وہاں پر اس سے پہلے بھی جا کر بیٹیوں کے درمیان میں بات کر کے آیا ہوں. میں تو پونا شہر والوں سے کہوں گا کہ یہ شاندار ادارہ جو جامعۃ الصالحات چل رہا ہے کونڈوا شہر میں، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو یہاں بھیج کر دین کی بہتر تعلیم کا انتظام کریں، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں، یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیویاں اگر ہم نے ان کو دین کی بنیادی تعلیم بھی نہ دی تو کل قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ سکتی ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں مجرم بنا سکتی ہے. تو قاری ادریس صاحب کو، میں ان کی پوری ٹیم کو، جمعیت علماء پونا شہر کی پوری ٹیم کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جہاں آپ مختلف خدمات اور سیوائیں دین کے اعتبار سے، میڈیکل کے لائن سے، ایجوکیشن کے لائن سے، شکشن کے لائن سے آپ انجام دے رہے ہیں. جمعیت علماء شہر پونا نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آج کا یہ لائیو بیان رکھا ہے. ناظرین، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ الحمدللہ جمعیت علماء ارشد مدنی کی جانب سے ریاستی سطح پر نشہ مخالف مہم چلائی جا رہی ہے. الحمدللہ مجھے یہ کہنے پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جلگاؤں ضلع میں یہ کام بڑے زبردست کامیاب انداز میں ہوا. مختلف کالجز، مختلف اسکول، مختلف مسجدیں، مختلف محلے اور علاقے میں. تو آج جمعیت علماء شہر پونا کی جانب سے میں اصلاح معاشرہ کا یہ کورونا کی وجہ سے آن لائن بیان رکھا گیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچائیں. آئیے میں بات کرتا ہوں تھوڑا سا اصلاح معاشرہ پر. جی ہاں، اصلاح کے معنی آپ اور ہم جانتے ہیں، سدھارنا، سدھارنے کی محنت کرنا، اصلاح کی فکر کرنا. سماج کے اندر کوئی برائیاں پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور اچھائیوں کو عام کرنا. میرے بھائیوں، میری بہنوں جو بڑی تعداد میں میری بات کو سن رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اصلاح معاشرہ، سماج کے اندر پنپ رہی برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں اور محنتیں کرنا، سماج کے اندر اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کا استعمال کرنا، اپنا وقت دینا، اپنا مال لگانا اور اللہ کے بندوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے اور اچھائیوں کی طرف لانے کے لیے محنت کرنا. میرے بھائی، میری بہنوں، یہ ہم سب پر گویا کہ ایک قسم کا اخلاقی بھی فرض ہے، اسلامی بھی فرض ہے اور ایمانی بھی فرض ہے. جی ہاں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں مختلف قسم کی ہمارے سماج میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہے. شادیوں کو آپ دیکھیں، نکاح کے موقع پر آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی غلط رسومات اختیار کی جا رہی ہے اور شادیوں میں، نکاح میں اتنا زبردست انداز میں لاکھوں روپے فضول خرچ کیے جا رہے ہیں کہ ان لاکھوں روپے جو فضول خرچ کیے جا رہے ہیں ان کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو قوم کی 10 بیٹیوں کا ہم نکاح کروا سکتے ہیں اور ان کی بہترین زندگی کا انتظام کر سکتے ہیں. لیکن ہلدی کے نام پر غلط رسومات ہو رہی ہے، زنا عام ہو رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنیں بھی اس بات کو سن لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. 3 مرتبہ کہا نکاح کو آسان کرو، اور نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے. امت مسلمہ کا جوان بیٹا، امت مسلمہ کی جوان بیٹی کا نکاح آسان کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نکاح آسان ہوگا تو پھر زنا کے راستے، حرام کاری کے راستے، بدکاری کے راستے یہ بند ہو جائیں گے. آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے میں یہ بھی پیغام آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سماج میں ایسے جگہ جہاں پر فضول خرچیاں ہو رہی ہے، جن شادیوں میں، جن نکاحوں میں فضول خرچیاں لاکھوں روپے ریسیپشن کے نام پر ہو رہے ہیں، ہلدی کے نام پر ہو رہے ہیں، بارات کے نام پر ہو رہے ہیں، کھانوں کے نام پر ہو رہے ہیں، میں تمام میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ طے کریں کہ ہم ان نکاحوں میں بھی شرکت نہیں کریں گے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑا جا رہا ہے. اور میری بہنوں،
ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अल्लाह ने आपको भी बेटियां दी है, अल्लाह ने आपको बेटे दिए हैं। देखो कोई नहीं चाहता है कि उसकी बेटी की जिंदगी में तबाही आ जाए, उसकी बेटी की जिंदगी निकाह के बाद खराब हो जाए और शौहर और मियां बीवी में जुदाई का मामला आ जाए, तलाक हो जाए। कोई नहीं चाहता है कि उसके बेटे की जिंदगी तबाह हो, कोई नहीं चाहता है कि उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो। लेकिन उलमा कहते हैं कि जब निकाह के वक्त में, शादी के वक्त में हम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, तो फिर मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी के वो जुमले मुझे याद आ रहे हैं कि हज़रत शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने कहा कि अगर तुम अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाओगे, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाओगे, तुम्हारे थोड़े से अरमान हैं, तुम्हारी थोड़ी सी ख्वाहिशें हैं, तुम्हारे थोड़ी सी खुशियां हैं, लेकिन इन खुशियों और इन ख्वाहिशों और इन अरमानों को पूरा करने में अगर तुमने खुदा को नाराज किया और नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया, तो उलमा कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में महसूस भी नहीं होगा और अल्लाह जिंदगी का सुकून छीन लेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने सैकड़ों ऐसे निकाह देखे हैं कि जिनमें बिल्कुल पानी की तरह फजूल खर्ची की गई और लाखों रुपए खर्च किए गए झूठी शान और शौकत की खातिर, झूठी शान दिखाने की खातिर। तो फिर क्या हुआ? हमने अपनी आंखों से देखा है कि चंद महीनों के बाद मियां और बीवी और दोनों खानदानों में ऐसे मसाइल पैदा हो गए, ऐसे प्रॉब्लम पैदा हो गए कि फिर मामला तलाक तक पहुंच गया। हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे। आज निकाहों में आप देखिए, मेरी बेटियों में आपसे कह रहा हूं, मेरी बहनों में आपसे कह रहा हूं, मेरे भाइयों में आपसे कह रहा हूं कि निकाह के मौके पर आज वीडियो शूटिंग करना, और क्या कहते हैं, कैसा है रिकॉर्ड, कैसा है जिंदगी में शादी एक ही बार होती है ना, तो कैसा थोड़ा सा फोटो वोटो रिकॉर्ड करते हैं। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, मैं आपको बिल्कुल दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं कि शूटिंग करने वाले गैर मर्द, यहां तक कि कभी कभी तो नॉन मुस्लिम जवान, गैर मुस्लिम जवान हमारी बेटियों के उस रूम में भी घुसते हैं जहां दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुल्हन के तैयार होने का वीडियो भी तैयार होता है। मेरी बेटियों, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कितना बड़ा खतरनाक मर्ज मेरी कौम में भी आ चुका है। मुझे बात याद आ गई, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, कारी इदरीस साहब, मैं आपको बता दूं, यूसुफ ज़काती साहब और जमीयत उलमा के अराकीन से मैं कह दूं कि पूना में पहली मरतबा शायद ये बात होगी। मेरी बेटियों से मैं कह रहा हूं कि देखो पहले क्या होता था, बड़ी बुढ़ियों से पूछा पहले क्या होता था कि जिस दिन शादी होती थी, जिस दिन निकाह होता था, तो बेटियां 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, उस दिन तहज्जुद का भी एहतमाम करती थी। क्यों एहतमाम करती थी? कि अब मेरी ज़िंदगी नई शुरू होने वाली है, मेरी ज़िंदगी में अब जो लड़का आएगा मेरा शौहर बनकर आएगा, मेरा सरताज बनकर आएगा, नहीं मालूम वो कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। तो बेटियां 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, शुक्राने की नमाज पढ़ती थी, सलातुल हाजत पढ़ती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, क्योंकि दिमाग में ये बात रहती थी कि अल्लाह से दुआ मांगूं ताकि अगली मेरी जिंदगी सुकून के साथ और खैरियत के साथ और बरकतों के साथ गुजरे। लेकिन आज क्या हुआ मेरी बहनों, मेकअप का रिवाज ऐसा आ गया, मेकअप का रिवाज ऐसा आ गया कि अब बेटियां 2-2 दिन पहले से नमाज नहीं पढ़ रही। आप कहेंगे मुफ्ती साहब क्यों? तो इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि मेकअप वाली ने बोली है। 1-2 दिन पहले से पेंटिंग शुरू हो जाती है, कलर शुरू हो जाता है, तो 2-2 दिन पहले से बेटियां मुंह नहीं धो रही है, क्योंकि नमाज के लिए वजू करना पड़ेगा और वजू में क्या होगा, चेहरा धोना पड़ेगा। और फिर जिस दिन शादी है तो फिर तो 25,000 का मेकअप हुआ है, 10,000 का मेकअप हुआ है, 15,000 का मेकअप हुआ है, तो उस दिन तो वजू करने का, नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा तो फिर 25,000 पानी में बह जाएंगे, वजू में बह जाएंगे। ओ मेरी बेटियों, ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आपको बता रहा हूं कि ये मेकअप की वबा ने मेरी बेटियां, मेरी कौम की उन बेटियों का जिस दिन वो दुल्हन बन रही है उस दिन उन्होंने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए था, मगर उस दिन वो मेकअप की वजह से नमाज भी नहीं पढ़ पा रही है, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ है, वज़ू ज़रूरी है, और वज़ू करेगी तो फिर 20,000 का मेकअप धुल जाएगा। अब मेरी बेटियों आप बताओ, अब मेरे भाइयों आप बताओ, इस्लाही मुआशरा पर मैं बात कर रहा हूं, आप बताओ कि जिंदगी में सुकून कैसे आ सकता है? जिंदगी में
चैन अमन कैसे आ सकता है? क्यों नहीं फिर मियाँ बीवी में झगड़े होंगे और तलाक तक जाएंगे? क्यों नहीं खानदानों में झगड़े होंगे? ओ अल्लाह के बंदो, मैंने देखो शुरू में शेर पढ़ा। क्या शेर पढ़ा मैंने? कि हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने। ओ यारो, आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसी तालीमात दी है, ऐसी तालीमात दी है कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, उठने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर उठने तक अगर हम नबी के तरीक़ों पर अमल करेंगे, अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं कि दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, दुनिया में भी सुकून मिलेगा और फिर मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। आज इस्लाह मुआशरा हम सब की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ जमीयत उलमा की मुहिम नहीं है, यह जमीयत उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। आज मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। आज मेरी कौम के जवानों को, मेरी कौम की बेटियों को एक और लत में हम देख रहे हैं। कौन सी लत? मोबाइल की लत। मोबाइल ने मेरी बेटियों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मोबाइल ने घरों को तबाह कर दिया है। आज घर में अगर चार लोग हैं, बीवी है, शौहर है, बेटा है, बेटी है, रात को चारों घर पर जमा हो जाते हैं। शौहर भी काम धंधे से, ऑफिस से, नौकरी से आ जाता है। आप देखो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब चारों घर में हैं तो भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। बेटी अपने मोबाइल में लगी हुई है, बीवी अपने मोबाइल में लगी हुई है, बेटा अपने व्हाट्सएप फेसबुक में लगा हुआ है, शौहर अपने दोस्तों से चैटिंग में और चेक करने में लगा हुआ है किसने क्या भेजा। आज घर में चार लोग हैं लेकिन आपस में बात करने को तैयार नहीं। मोबाइल ने हमारा वो जो वक्त था कि हम एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से बातें करते, घर की कुछ बात होती, मोहब्बत की कुछ बात होती, तरबियत की कुछ बात होती, नमाज की कुछ बात होती, दीन की कुछ बात होती, लेकिन आज मोबाइल ने हमारा वो वक्त भी छीन लिया। हम घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि मुझे और भी कुछ बातें करनी है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर मैं ये कहूं, कारी इदरीस साहब, मियाँ शुएब मियाँ, अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि आज हर आदमी कम से कम 5 घंटे मोबाइल में दे रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्रॉडकास्ट और शेयरिंग और चैटिंग। जी हाँ, कम से कम। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, मेरी बात को जितने भी लोग सुन रहे हैं समझ लो इस बात को। 5 घंटे कम से कम एक आदमी दे रहा है, जबकि अगर वो कुरान को 15 मिनट देता, 15 मिनट अगर कुरान को देता तो 15 मिनट में शाकिर भाई एक पारा हो जाता है। अब 15 मिनट अगर कुरान को दे दी, अगर मेरी बेटी ने, मेरी माओ बहनों ने, मेरे जवानों ने 15 मिनट अगर रोजाना कुरान को दिए तो 1 महीने में 1 कुरान मुकम्मल होगा और 1 साल में 12 कुरान मुकम्मल हो गए। लेकिन कोई कुरान को वक्त देने को तैयार नहीं। जी हाँ, कोई नमाजों के लिए वक्त देने को तैयार नहीं, बेचैन। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि जमीयत उलमा ने नशा मुखालिफ मुहिम चलाई। कारी इदरीस साहब, मैं कहता हूं कि इस वक्त तो सबसे खतरनाक नशा मोबाइल का हो गया है। जी हाँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं इस्लाह मुआशरा के इस प्रोग्राम में कि जनाब इस वक्त अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा दज्जाल, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि क़यामत के करीब में दज्जाल आएगा, तबाही मचाएगा। जी हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा दज्जाल, सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला कोई है तो मैं कहता हूं कि आज के दौर का दज्जाल है मोबाइल। जिंदगियों को तबाह कर दिया, मेरे कौम के जवानों की जिंदगियों को छीन लिया, मेरी कौम की बेटियों की जिंदगी को छीन लिया, तबाही की तरफ डाल दिया। जी हाँ, जैसे वो कहता है ना, मैं कहता हूं अक्सर कि आज से 15 साल पहले जब नए नए मोबाइल आए थे तो एक कंपनी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था मालूम आपको? कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मैं कहता हूं कि वो कर लो दुनिया मुट्ठी में ये नारा नहीं था। हाँ, कौन सी कंपनी ने लगाया था मालूम आपको? ये लगाया था रिलायंस कंपनी ने। जी हाँ, जिसकी दलाली में इस वक्त हम किसानों के खिलाफ भी कानून हटाने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें अडानी और अंबानी की दलाली करनी है। तो रिलायंस ने नारा लगाया था जब नया नया मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में,
تو मैं कहता हूं कि वो कर लो दुनिया मुट्ठी में नारा नहीं था, वो था कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज 2x2 इंच के स्क्रीन पर हर गुनाह हमारी मुट्ठी में, हथेली में मौजूद है। जिन गुनाहों को, जिन नाच गानों को, जिन गंदगियों को, जिन फिल्मों को पहले गांव से बाहर, बस्ती से बाहर जाकर देखने के लिए जाना पड़ता था, आज वो हर हथेली में, हर मुट्ठी में मौजूद है। जी हाँ, www.americakenange.com आ गए, अमेरिका के नंगे, आ गई दुनिया की गंदगी, सारी गंदगियां मोबाइल में मौजूद है। और मेरी बहनों, एक बात याद आ गई तो कह रहा हूं कि आज ऑनलाइन तालीम हो रही है। ऑनलाइन बहुत अहम बात याद आ गई खालिद इदरीस साहब, ऑनलाइन तालीम हो रही है आज, है ना। 7वीं की मेरी बेटी, 8वीं की मेरी बच्चियां, आज वो घर पर मोबाइल पर तालीम हासिल कर रही है। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे कौम के जवानों, ओ बहनों के भाइयों, ओ बेटियों के बाप, ओ बेटियों की मां, सुन लो। आज मेरी कौम की छोटी छोटी बच्चियां 7वीं और 8वीं के मोबाइल पर ऑनलाइन एजुकेशन ले रही है। हमको लग रहा है कि उसकी 40 मिनट की क्लास है, साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की, मराठी की, लेकिन वो ऑनलाइन तालीम लेते वक्त, मैं पूरे मुल्क में इस वक्त कह रहा हूं कि अपनी बेटियों के साथ में बैठो, अपने मासूम बच्चों के साथ में जब उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, उनके बाजू में, उनके बगल में बैठो, क्योंकि शैतान ऑनलाइन क्लास चलाते चलाते बीच में कौन सी गंदी तस्वीर या गंदी वीडियो उसमें डाल देगा। और मेरी कौम की बेटी, मेरी कौम का मासूम बच्चा अगर वो गंदी तस्वीर और गंदी वीडियो देखने में लग गया तो उसके दिमाग को बिल्कुल वरगलाया जा सकता है, और मेरी कौम की उस बेटी का दिमाग खराब हो सकता है, बेटे का दिमाग खराब हो सकता है। और मोबाइल की और इंटरनेट की ये गंदगी उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी दे रहे हो ना, तो आजाद मत छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों के साथ बैठो जब वो क्लास हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर जो एडवर्टाइज आ रही है, जो इश्तिहारात आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखते देखते आ जाती है। 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बच्चा मोबाइल खोलते खोलते कौन सी गंदगी में मुब्तला हो गया, उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे आज हमारे हाथों से निकल जाएगी। आज इर्तिदाद हो रहा है, आज मेरी बेटियां, मेरे बेटे, ये इश्क का जो भूत है, ये चक्कर है, ये मोबाइल ने ऐसा गंदगी इनके दिमाग में डाल दिया कि आज मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है। अभी मगरिब के बाद मुझे फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब, हमारे शहर से एक जवान बेटी इधर भाग कर आई है एक नॉन मुस्लिम के साथ। मुफ्ती साहब, वो ईमान भी छोड़ने को तैयार है, वो इस्लाम भी छोड़ने को तैयार है। उसकी वजह यह है कि उसके दिमाग में वो इश्क का भूत बैठ गया है कि उसके लिए दीन, धर्म और ईमान भी छोड़ना आसान हो गया है। आज इर्तिदाद की लहर है। आज मुस्लिम कौम की बेटियां, मेरी कौम के बेटे भी इस इश्क और ये मोबाइल की गंदगी ने उनकी ज़िंदगी को ऐसे तबाह कर दिया कि उनके दिल और दिमाग को भी ख़त्म कर दिया, और वो फिर ईमान, इस्लाम, नबी, कुरान, दीन, धर्म को भी छोड़ने को तैयार है। इस्लाह मुआशरा में हमको ध्यान देना पड़ेगा। और याद रखें, कोई ये ना सोचे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद तो बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, 5 वक्त के नमाजी है। ओ मेरे यारों, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को समझ लो कि कब हमारे बच्चे गलत राहों पर चले जाएंगे, कब उनको हमारे पड़ोस का, हमारे मोहल्ले का गंदा माहौल उन्हें भी गलतियों में मुब्तला कर देगा, गुनाहों में मुब्तला कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जमीयत उलमा की इस्लाह मुआशरा की जो मुहिम चल रही है, नशा मुखालिफ जो मुहिम चल रही है, इसमें सब लोग साथ दो जमीयत उलमा का। ये सिर्फ जमीयत उलमा शहर पूना का काम नहीं है, जमीयत उलमा जलगांव का काम नहीं है, जमीयत उलमा महाराष्ट्र का काम नहीं है। हम हर शख्स की जिम्मेदारी है कि बुराइयों को खत्म करने के लिए हम कोशिशें करें, मेहनतें करें। जी हाँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान क्या कह रहा है, आइए कुरान क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को जहन्नम की आग से। जी हाँ, आज अभी गर्मी आ रही है,
औरतों का देखो आप, बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है। गर्मी आ रही है, गर्मी के आने से पहले शौहर को कहती हैं कि भैया ज़रा एसी को साफ़ करवा लो, ज़रा कूलर को साफ़ करवा लो। सर्दी आने से पहले स्वेटर का इंतज़ाम, लिहाफ का इंतज़ाम, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत करती है कि खुद सूखे में नहीं सोएगी, खुद सूखे में नहीं सोएगी मगर बच्चे को सूखे में सुलाएगी, खुद सर्दी में ठिठुर जाएगी मगर औलाद को सर्दी से बचाने की, बरसात से बचाने की, गर्मी से बचाने की फिक्र करेगी। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, ऐसे ही अल्लाह कह रहा है कि अपने आप को भी जहन्नम की खतरनाक दहकती अंगारों से बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे रात को 12 बजे घर पर आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं। मेरे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है 15-20 हज़ार रुपए का, आखिर वो क्या कर रहा है मोबाइल पर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम छूटेंगे नहीं अगर हमारी औलाद की हमने सही तरबियत नहीं की और उनकी देखभाल नहीं की और इस्लाह माशरा और समाज सुधार की अगर फिक्र नहीं की और हमने अपनी औलाद को बुराइयों से रोकने की मेहनतें नहीं की, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में यही औलाद हमको मुजरिम बनाकर खड़ा करेगी। जी हाँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे प्यारे आका ने फरमाया, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। माँ जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, घर के बड़े जिम्मेदार है ना, सबसे अपनी जिम्मेदारी के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा कि क्या तूने औलाद को सिर्फ नोटे छापने की मशीन बनाया था। जी हाँ, बनाइए, आप बेहतरीन ताजिर बनाइए, बिजनेसमैन बनाइए, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री दीजिए, लेकिन उनकी इस्लाह की फ़िक्र भी कीजिए, वरना कल क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी और बच नहीं पाएंगे हम लोग। जी हाँ, तो नबी ने कहा कि हम में से हर शख्स जिम्मेदार है। हमारे पड़ोस में अगर कोई बुराई के अड्डे चल रहे हैं तो रोकना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हाथ से रोकने की ताकत है बुराई को होते देखो। नबी पाक ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। मेरे आका ने फरमाया कि जो तुम में से किसी बुराई को होता देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उस बुराई को हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोकने की कोशिश करें। और फिर फरमाया कि हाथ से रोकने की ताकत नहीं है फबिल्लिसानिही, ज़बान से रोके। जैसे अभी मैं बयान कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोल कर बुराइयों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? और ये दोनों भी ताकतें नहीं हैं। हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है, ज़बान से रोकने की भी ताकत नहीं है। तो नबी ने फरमाया फ़बिक़ल्बिही, कि जो कुछ बुराई हो रही है दिल से, इस बुराई को, इन बुराइयों को दिल से बुरा समझे कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड स्टेप है दिल का, हम उसको पहले स्टेप पर ला कर रख देते हैं। अरे मेरे भाई, तूने कोशिश करना चाहिए था हाथ से रोकने की, तूने कोशिश करना चाहिए था ज़बान से रोकने की। बुराई के अड्डे तेरे मोहल्ले में चल रहे हैं, तू बड़ा खुश है कि मेरे बच्चे नहीं जाते हैं, मेरे बच्चे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कब तेरी औलाद तक भी उस बुराइयों के अड्डों की हवा चल जाएगी और कब तेरी और हमारी औलाद उन बुराइयों के अड्डों तक पहुंच जाएगी, कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाह मुआशरा का काम करे और बुराइयों को ख़त्म करने की मेहनतें करे और अच्छाइयों को फैलाने का काम करे। आज जमीयत उलमा ने नशा मुखालिफ मुहिम चलाई है। आइए बस आखिर बात उसी पर कर रहा हूँ। नशा मुखालिफ मुहिम चलाई, क्यों चलाई भाई जमीयत उलमा ने? जमीयत उलमा तो मुल्क की बहुत बड़ी तंजीम है। जब किसी को आतंकवाद के नाम पर उठाया जाता है, दहशतगर्दी के नाम पर उठाया जाता है, तो रिश्तेदार भी उसका साथ नहीं देते हैं। जी हाँ, डर लगता है कि अगर उसका साथ दिए तो कई शक की सुई, आतंकवाद की सुई, मुल्क की आतंकवादी मीडिया हमारी तरफ न मोड़ दें, हमें न गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे वक्त में जब कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता, उस वक्त जमीयत उलमा लाखों रुपये खर्च करती है और हमारे इन बेकसूर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फांसी के फंदों से भी बचाने में कामयाब होती है। जमीयत उलमा तो बड़ी तंजीम है, लेकिन आज जमीयत उलमा ने बिल्कुल मैदानी सतह पर जाकर, जी हाँ, ग्राउंड लेवल पर जाकर नशा मुखालिफ मुहिम चलाई। हमारे बुजुर्गों ने आज हमको आदेश दिया
आदेश दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं कि हमारे इलाके में नशा मुखालिफ मुहिम कामयाबी के साथ चल रही है। पूना में नशा मुखालिफ मुहिम, कोरोना आ गया, मौका नहीं मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बयानात के ज़रिए से हम बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचा रहे हैं। और आजकल तो कोरोना ने सब सिखा दिया, ऑनलाइन बयान सिखा दिया। आजकल तो शेखुल हदीस भी दरस बुखारी कैमरे के सामने ऑनलाइन पढ़ा रहा है, शेखुल तफसीर भी जो है कैमरे के सामने बैठे हैं और दरस तफसीर दे रहे हैं। मिशकात, मुस्लिम, बैज़ावी, सारे मदरसों में ऑनलाइन तालीम हो रही। क्या करें? तो ऑनलाइन आज जमीयत उलमा शहर पूना की जानिब से ये प्रोग्राम हो गया। तो आखिरी में आपको बात बता दूं कि जमीयत उलमा नशा मुखालिफ मुहिम चला रही है। उसकी वजह यह है कि आज से जैसे 1500 साल पहले आपने वो हदीस सुना होगा कि आज से 1500 साल पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था? अल खमरु उम्मुल खबाइस। मेरे आका ने फरमाया था कि नशा शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। नशा करेगा तमाम बुराइयां करना आसान हो जाएगा। नशा करेगा जिना करना आसान, नशा करेगा मर्डर करना आसान, नशा करेगा कत्ल करना आसान, नशा करेगा माँ को गालियां देना आसान, नशा करेगा बाप को धक्के देना आसान, नशा करेगा बीवी को मारना आसान, नशे की हालत में तलाक देना आसान, नशे की हालत में बड़े बड़े गुनाह आसान हो जाते हैं। इसलिए 1500 साल पहले हमारे आका ने यह फरमाया था कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। आज कारी इदरीस साहब, यूसुफ ज़कासी साहब, शुएब मियाँ, मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, जो बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं, जब इनका रेशो निकाला गया कि ये किस वजह से हो रहे हैं, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। 90% जराइम और क्राइम जो हो रहे हैं वो नशे की वजह से हो रहे हैं। जी हाँ, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले नशे को हराम करार दिया। कुरान ने क्या कहा सुन लो, या बड़े प्यारे अंदाज में कुरान ने कहा, या अय्युहल्लदीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, है ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ, बुत परस्ती, ये तमाम की तमाम चीज़ें रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये सुन, ये बड़ी पलीद चीज है, बड़ी नापाक चीज है, बड़ी बुरी चीज है। अमल शैतान, ये शैतान का अमल है। फज्तनिबूहु, तुम इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आज आप देखें कि नशा की वजह से न जाने मेरी जवानों की जिंदगी कैसे तबाह हो रही है। आज मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि मुंबई के मुंब्रा में, मुंबई के गोवंडी में और हमारे बड़े बड़े इलाकों में आज नशे का कारोबार कौन कर रहे हैं? हमारे अपने मुसलमान भाई कर रहे हैं। बाद में पता चला कौन पकड़ा गया नशे में, तो कहा कि फुला हाजी साहब फुला सैयद साहब। ओ अल्लाह के बंदो, मैं नशा के कारोबारियों से भी कह रहा हूं कि याद रखो, हाथ जोड़कर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम सुना रहा हूं कि तुमने 2 कौड़ियों की खातिर अगर मुसलमान मोहल्लों में नशे का कारोबार किया और जिंदगियों को तबाह किया, अगर अल्लाह के बंदों की जिंदगियों से खेला और तबाह किया, तुम्हारी औलाद की जिंदगियां तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह तबाह करेगा, क्योंकि तुमने 2 कौड़ियां कमाने की वजह से नशे का कारोबार किया और तुम्हारी वजह से कई जवानों की जिंदगियां तबाह हुई। तो फिर तुम्हारी औलाद कैसे तबाह नहीं होगी? तुम्हारी औलाद कैसे नेक होगी? हो ही नहीं सकता। खैर आइए, वक्त ख़त्म हो रहा है। अब बाद लोग क्या समझते हैं, कारी इदरीस साहब, बाद लोग समझते हैं कि नशा वही है जो सिर्फ बोतल में है। नहीं, और लोग बेवकूफ़ कहते भी है नशा शराब में होता, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो मैं कहता हूँ बोतल नहीं नाचती, तू नाच रहा है, और तू नाचकर नालियों के किनारे पड़ा हुआ है, गंदगी के पास पड़ा हुआ है, कुत्ते तेरा मुंह धुला कर जा रहे, हर गुजरने वाला इंसान तुझे शराबी समझकर तुझसे नफरत कर रहा है, कोई तुझे गालियां भी दे के जा रहा है, शराबी कह रहा है, बेवड़ा कह रहा है। जी हाँ, तो अब लोग क्या समझते हैं कि वो सिर्फ शराब में ही नशा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आज हमारी हुकूमत भी कितनी मक्कार है, बल्कि गद्दार है मैं कहूँगा। अभी देखिए आप, 8 महीने से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, 8-9 महीने।
اب لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد بند, مندر بند, اسکول بند, کالج بند, مدرسے بند, سب بند. اور جب کھلے 7-8 مہینے کے بعد جب کھلے ہیں تو سب سے پہلے دیکھو حکومت کتنی مکار, حکومت کتنی غدار. سب سے پہلے حکومت نے مندر نہیں کھولا, مسجد نہیں کھولی, عبادت گاہیں نہیں کھولی, شکشن کے ادارے, ایجوکیشن کے تعلیم کے ادارے, مدرسوں کو, اسکولوں کو, کالجوں کو نہیں کھولا. حکومت بھی کتنی مکار ہے کہ سب سے پہلے بیوڑوں کا خیال رکھا, شرابیوں کا خیال رکھا, اور سب سے پہلے ملک میں شراب خانے کھلے ہیں. کیوں؟ تو بیوڑوں سے حکومت محبت نہیں کرتی. حکومت کو معلوم ہے کہ کروڑوں روپے کہاں سے ملیں گے, یہ بیوڑے ہی دیں گے, یہ شرابی دیں گے. تو حکومت سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ بین, شراب بین, نشہ بین کی بات کرتے ہو, ممنوع کرتے ہو, اور دوسری طرف آپ پرمٹ دیتے ہو, یعنی لو بھائی اجازت سے پیو, اجازت لے کر, پرمٹ لے کر شراب خانہ چلاؤ. تو حکومت سے بھی میں کہوں گا کہ اگر تم سچے ہو, ملک کی بھلائی چاہتے ہو, اور یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک کے جوان تباہ ہو رہا ہے, ہندو ہو, مسلم ہو, میری قوم کے اور اللہ کے تمام بندے ہیں, حکومت سے بھی میں کہوں گا کہ مکاری نہ کرے, غداری نہ کرے, شراب پر پوری طریقے سے پابندی لگائے. جی ہاں, آج نشہ, اب میں آخری بات جو کہہ رہا ہوں کہ نشہ صرف شراب میں نہیں ہے کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف شراب حرام ہے, نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام, ہر وہ چیز جو تجھے نشے میں لائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور قرآن کہتا ہے جو تیری زندگی کو نقصان پہنچائے. ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. تب نشہ صرف بوتل میں نہیں ہے, نشہ گٹکے میں بھی ہے, نشہ گوا میں بھی ہے, نشہ تمباکو میں بھی ہے, ڈرگس ہے, افیم ہے, ہیروئن ہے, ایم ڈی ہے, کھینی ہے, بیئر ہے, کھانسی کی بوتل. بعض جوان بچے کھانسی کی بوتل زیادہ پی کر نشہ کر رہے ہیں, اور وہ موسیٰ کا گل. کیوں؟ یہ سب نام ہیں جو نشے کے نام ہیں, اور ہر چیز میں ان میں نشہ ہے, اور یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں. اور یاد رکھو حرام میں کوئی کوالٹی نہیں رہتی کہ یہ تھوڑا سا کم حرام, یہ تھوڑا سا زیادہ حرام, شراب تھوڑی زیادہ حرام ہے اور گٹکا تھوڑا کم حرام ہے. نہیں, حرام میں کوئی کوالٹی نہیں رہتی, بلکہ شریعت نے تو یہ اصول بھی بیان کیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار تم کو نشے میں لائے گی اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. تو آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں, آج آپ دیکھیں گٹکے کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. کئی لوگ جو گٹکا کھا رہے ہیں زبان کاٹی جا رہی ہے, زبان کا کینسر ہو گیا. ایک ابھی مجھے فون آیا کہ صاحب میرے لیے دعا کرنا, میری زبان آدھی کاٹ دی گئی, زبان کا کینسر ہو رہا ہے, گال کاٹے جا رہے ہیں, اور لاکھوں روپے گٹکا کھانے میں خرچ کر رہا ہے, اور 15-20 سال کے بعد میں کینسر ہو رہا ہے, مر رہا ہے. تو یہ بھی آتما ہتیا ہے. کیوں؟ اچھا, سگریٹ کے پیکٹ پر, گٹکے کے پیکٹ پر کمپنی کو لکھنا پڑتا ہے, یہ اصول ہے, اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کینسر ہو سکتا ہے, نقصان ہوگا, اور پھر بھی تم کھا رہے ہو. حکومت تو مکار ہے. میں نے کہا حکومت تو کہتی کمپنی والے سے بھائی یہ لکھ دے یار, صرف تو لکھ دیں کہ کینسر ہو سکتا ہے نا, اور پھر اجازت ہے تجھے کاروبار کرنے کی. تو حکومت بھی مکاری کر رہی ہے. میں جوانوں سے کہوں گا کہ جتنے بھی قسم کے نشہ ہے خدا کے واسطے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. آج مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے, اور بات میں ختم کر رہا ہوں, کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں کئی واقعات, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ نشے کی حالت میں جوان نے اپنی سگی بہن کے ساتھ مکالمہ کیا. جی ہاں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے. تو نشہ حرام ہے, نشہ تمام برائیوں پر لائے گا. اس لیے جمعیت علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں یہ نشہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور نشہ میری امت کے جوانوں کی زندگیاں ختم کر رہا ہے. اس لیے جمعیت علماء نے نشہ مخالف مہم چلائی ہے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ نشے کے خلاف, نشے کے کاروبار کے خلاف, اللہ کے حبیب نے فرمایا زبان سے روکنے کی طاقت ہے, زبان سے روکو. اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے, ہاتھ سے روکو. لیکن ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے محنت کرو. اسے ہی کہتے ہیں اصلاح معاشرہ. اور جمعیت علماء شہر پونا کی اس کوشش کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. قاری ادریس صاحب, یوسف زکاتی صاحب, ہمارے بھائی شعیب صاحب, اور جتنے بھی ہمارے جمعیت علماء کے, مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں, سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حکومت نے اگر پروگرامز کرنے کی اجازت نہیں دی تو آپ آن لائن یہ پروگرام کر رہے ہو. اور آج کل ہر آدمی موبائل میں لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جلسے کے پروگرام میں, اسٹیج کے پروگرام میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے جتنے لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں. اور
कल तक के भी देखेंगे। जी हाँ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और पूना वालों में आपसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे जमीयत उलमा वहाँ काम कर रही है तो आप जमीयत के साथ जुड़ जाएँ, हर तरह से ताउन करें। जमीयत उलमा मुल्क की बहुत बड़ी तंजीम है जो हर मोड़ पर कौम का भी साथ देती है और मुसलमानों के बड़े काम करती है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जमीयत उलमा तो वो है कि ज़मीनी आसमानी कोई भी आफत आए ज़ात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती। जैसे कोल्हापुर में अभी जमीयत उलमा ने मकानात हिंदुओं को भी बना कर दिया जो सैलाब में तबाह हो गए थे, गुजरात में मकानात, अभी दिल्ली में मकानात। तो जमीयत उलमा बड़ी तंजीम है, जमीयत उलमा के साथ जुड़े। और मैं पूना वालों से ख़ास तौर से कहूँगा कि कोंडवा में जो मदरसा है जामियतुस सालिहात, मैंने अपनी आंखों से देखा। कारी इदरीस साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। वहाँ पर जमीयत का एक दवाखाना भी चलाते हैं, वो इमदादी दवाखाना भी चलाते हैं, बहुत 10-20 रुपए में इलाज होता है। तो आप जमीयत उलमा का साथ दें और अपनी घर की बेटियों को, अपने बच्चों को मदरसों में भी भेजें, उनकी दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। और जामियतुस सालिहात जो लड़कियों की दीनी तालीम का तरबियत का बेहतरीन मरकज़ है, कोंडवा में 500 से ज़्यादा लड़कियाँ बेटियाँ वहाँ पढ़ती है। आप वहाँ पर भी अपनी बेटियों को भेज कर दीन की बुनियादी तालीम दिलाएं, उनकी इस्लाह की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाएं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। मेरे मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब दो जहाँ, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला जमीयत उलमा शहर पूना ये कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, इस्लाह मुआशरा की नशा मुखालिफ मुहिम चला रही है, इस्लाह मुआशरा के काम कर रही है। जमीयत उलमा शहर पूना की इस कोशिश को बेइंतहा कामयाब फरमा। दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में इसे कबूल फरमा, बेहतर बदला नसीब फरमा। मेरे मौला हर शर से, हर आफत से, हर बीमारी से, हर वायरस से तू हम सब की हिफाजत फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फ़ज़ल से, करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत उलमा पुणे शहर की जानिब से ये पहला प्रोग्राम जो ऑनलाइन हुआ है, आप हजरात ने इसको अहमियत दी और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हम जमीयत उलमा पुणे शहर और तमाम ही अराकीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब दामत बरकातुहुम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम नाज़रीन के भी ममनून और मशकूर हैं। हम अराकीन जमीयत उलमा जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारा ताउन फरमाया, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, मौलाना मूसा साहब, मौलाना शाकिर, मौलाना ज़की, कारी मुश्ताक साहब, मौलाना फ़ारूक, कारी शमशेर, मौलाना मंज़र इमाम, मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब, मौलाना असलम, मौलाना एहसान गौहर साहब, मौलाना अमजद मिल्ली साहब और इसी तरह जनाब यूसुफ ज़काती साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पूना शहर, जनाब शफ़क़त अहमद साहब ख़ज़ानची जमीयत उलमा पुणे शहर, जनाब आसिफ खोकर साहब ज़िम्मेदार इरोड़ा और सेक्रेटरी जमीयत उलमा पुणे शहर, इकबाल हमीद साहब, हाजी मखसूस सलमानी साहब, रफ़ीक मुलानी साहब, मज़हर शेख साहब, हाफिज़ महताब आलम साहब, हाजी फ़याज़ुद्दीन अंसारी, तस्लीम अंसारी, नसीर अंसारी साहब, नसीम आगा, रशीद सर, नासिर शेख, मुबारक भाई, मंसूर शेख साहब, ज़ाकिर नद्दाफ़, ज़ाकिर सुंडके साहब, अजमल अंसारी, इफ्तिखार अंसारी साहब, दिलशाद अंसारी साहब और इसी तरह जमीयत उलमा शहर पूना के साथ देने वाले जनाब आरिफ कांचवाला और एडवोकेट का नाम शाहिद अख्तर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला पूना, इन हज़रात ने हमारा ताउन फरमाया। हम सभी के बहुत
مشکور اور ممنون ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے گا۔ السلام علیکم